Hello student, today we are going to start the lesson number 1 of the civics section in class 9th, democracy in the contemporary world. Okay, so let me start this chapter, and before start about the discussion of democracy in detail, we discuss here that about the two tales of democracy. First tales which was started in the Chile, where the president of Chile was Salvador Allende. And Salvador Allende, who was the president of the Chile, has been elected as a president by all the people democratically. And in 11 September 1973, his government was overthrown by the military. Why it was happened so? Because Allende in his ruling, he gave the many benefits to the peoples, like to help the poor and the workers, or they reformed the educational system, free milk for children, and redistribution of land to the landless farmers. But their opposition parties members are very hated to Allende, and he was also opposed to foreign companies taking away natural resources like copper from the country. And so there was the some peoples who was the rich persons and the church who opposed all policies of the Allende, and the some other political parties who hated from the Chile's present government of the Allende's government. They also opposes Allende's. And in on the morning of 11 September 1973, the military took over the seaport, and the defense minister was arrested at firstly, and then they raise above they proceed towards the president's office, and now they said to the president that to give the surrender to the military power. So the Allende, who was present president at that time, he was totally refused to give their surrender, and he when he refused to surrender to the military, so Allende becomes totally alone. And now at that time, Allende realizing the danger to the country and to his life, so he randomly addressed the people on the radio. And after his address, then the military surrounded him in the president's house and started bombing it. And in this attack, Allende totally died. Or when Allende died, the other members of his family get thrown in the prison. And after Allende's rule, there was a General Augusto Pinochet, who was an army leader. He led the coup, and the government of the United States of America was also unhappy with Allende's rule, so they supported to the Pinochet. And at that time, after Allende, Pinochet became the president of the country and ruled it for the next 17 years. It means there was the power which was shifted to the democracy, from democracy towards the military officers. And the rule of Pinochet's government is totally established the dictatorship in the Chile. The government of Pinochet tortured and killed the several of those peoples who are innocent and who supported Allende, and those who wanted the democracy to be restored. So in this way, General Alberto Bachelet of the Chilean Air Force and many other officers who also refused to join the coup, and they always opposed to the Pinochet. So the General Bachelet's wife and daughter were put in prison and tortured. Okay, so more than 3,000 people were killed in this military attack, and many of them missing at that time. So in this story, we see that there was a rule which was established from democracy to military coups. ओके बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको हिंदी में समझा देती हूँ इस चीज़ को कि यहाँ पर दो कहानियाँ हैं डेमोक्रेसी के बारे में। सबसे पहले क्या होता है, चिली की बात करेंगे। चिली में क्या होता है कि एक प्रेसिडेंट होते हैं जिनका नाम होता है सल्वाडोर अलेंडी। सल्वाडोर अलेंडी जो है चिली के प्रेसिडेंट चुने गए थे जनता के द्वारा। और होता क्या है एक्चुअली कि जब ये चुने गए थे तो 1970 में इन्होंने क्या किया कि अपने गठबंधन की सरकार बनाई, कोलिशन गवर्नमेंट बनाई।
और जिस समय ये इनकी गवर्नमेंट थी एलएनडी की, तो उस समय इन्होंने गरीबों की सहायता करना, एजुकेशनल सिस्टम में बहुत सारे सुधार करना, बच्चों के लिए जैसे फ्री दूध बंटवाना, और जिनके पास जो भूमिहीन किसान थे, जिनके पास किसान के पास जो खेती नहीं थी, उनको दोबारा से लैंड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए। तो बहुत सारे जो फॉरेन कंपनीज थी वो इनका अपोज करती थी, इनके विरोध में रहती थी, और बहुत सारे लोग जो नेचुरल रिसोर्सेज दिल्ली से ले जाया करते थे बाहर की तरफ, तो इन्होंने उसका भी विरोध किया। तो वो कंपनीज जो थी, जो फॉरेन कंपनीज थी, वो भी इनके विरोध में आ गई। अब दूसरी बात ये कि जो भी लैंडलॉर्ड्स थे, जो रिच थे, जो अमीर बहुत थे, उनका नुकसान हो रहा था, और जो चर्च था उसने भी इनको अपोज किया। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी जो इनको अपोज करती थी। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ का जो मिलिट्री कूप था, मिलिट्री शासन था, उनके साथ अपना हाथ मिला लिया। और 11 सितंबर 1973 को क्या होता है कि मिलिट्री आकर के इनको, पहले इनके डिफेंस मिनिस्टर को घेर लेती है, उनको अरेस्ट कर लेती है, उसके बाद में अटैक करने के लिए इनके ऑफिस की तरफ बढ़ती है। वहाँ पर जाकर के मिलिट्री ये बोलती है इनसे कि आप तुरंत सरेंडर कर दें हमें, लेकिन एलएनडी जो है उन्होंने सरेंडर करने से इनकार कर दिया मिलिट्री को। तब इन्होंने क्या किया, वहीं पर एक प्रेसिडेंट के रूम में एक रेडियो दिया जाता है। तो रेडियो पे ये अपने पूरे कहते हैं सभी लोगों को एड्रेस करते हैं, अपनी कंट्री के सभी लोगों को। और उसकी जब जैसे ही इनका संबोधन खत्म होता है, तो उसके बाद क्या होता है कि जो मिलिट्री होती है वो इनको पूरी तरीके से घेर लेती है प्रेसिडेंट के हाउस को, और वहाँ पर से बम्बार्डमेंट कर देती है। बम जब इनके ऊपर डाल दिया जाता है, तो एलएनडी वहाँ पर तुरंत डेथ हो जाती है एलएनडी की, और इनकी जो बीवी बच्चे होते हैं उनको सबको एक कॉन्स्पिरेसी के तहत, एक षड्यंत्र के तहत उन पर हिंसा की जाती है। इनके बीवी बच्चों को भी मार दिया जाता है, पहले प्रिजन में डाला जाता है, जेल में, उसके बाद उनको एग्जीक्यूट करा दिया जाता है। इस तरीके से हमने देखा कि 11 सितंबर 1973 को क्या हुआ कि मिलिट्री कूप जो थी उसका शासन हो गया। वहाँ पर एक जनरल अगस्टो पिंचैट होते हैं, उन्हीं के लीडरशिप में ये जो मिलिट्री कूप होता है वो अटैक करने जाता है एलएनडी के ऊपर। और इसके बाद जब एलएनडी की डेथ हो जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो ये पिनोचेट होते हैं, इनकी गवर्नमेंट आ जाती है। पिनोचेट की गवर्नमेंट से जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बहुत खुश होता है, क्योंकि वो एक्चुअली क्या है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो कि कहते हैं कि बाहर फॉरेन कंपनीज में मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, जो कि यहाँ से जो चिली है वहाँ से बहुत सारा कॉपर ले जाया करती थी। तो अब जब एलएनडी का रूल था तो वो लोग बहुत नाखुश थे, और जैसे ही एलएनडी का रूल हट करके पिनोचेट का रूल आ जाता है, तो वैसे ही जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो बहुत खुश हो जाता है। और अब क्या होता है कि 17 साल तक इसके बाद पिनोचेट जो है वो निर्बाधित रूप से 17 ईयर्स तक लगातार वहाँ शासन करते हैं। तो इसका मतलब है ये किस प्रकार की गवर्नमेंट बनी, ये किस प्रकार की गवर्नमेंट बनी जिसमें पावर जो थी वो देश की पावर शिफ्ट होकर के डेमोक्रेसी से, प्रजातंत्र से चली गई मिलिट्री के हाथों में। मिलिट्री के हाथों में जाने के बाद में कहता है कि पिनोचेट जो होता है, पिनोचेट की रूलिंग जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा डिक्टेटरशिप होती है, निरंकुश शासन करता है वो, सब कुछ जिसको भी चाहता था उसको टॉर्चर करता था, जिसको भी आता था वो मारता था। तो इस तरीके से जो लोग एलएनडी के सपोर्टर्स होते हैं या फिर जो डिमांड करते हैं कि दोबारा से डेमोक्रेसी लाई जाए, उनको पिनोचेट बहुत ज़्यादा प्रताड़ना देता था। तो इस तरीके से अल्बर्ट बैचलेट जो पिनोचेट होते हैं, इसके वहाँ पर एक जनरल होते हैं दूसरे, जिनका नाम होता है अल्बर्टो बैचलेट। वो एक्चुअली एलएनडी के सपोर्टर होते हैं चिली में। और वो जब सपोर्टर होते हैं तो उन्होंने क्या किया कि वो उन्होंने मिलिट्री को ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। जब मिलिट्री को ज्वाइन करने से वो इनकार कर देते हैं, तो उनकी जो वाइफ होती हैं एल्बर्ट बैचलेट पिनचेट की, उनको जो एल्बर्ट बैचलेट की, इनको जो है इनकी वाइफ को और उनकी डॉटर को जेल में डाल दिया जाता है, बहुत टॉर्चर किया जाता है। उसमें 3000 से ज़्यादा लोग मार दिए जाते हैं मिलिट्री के द्वारा, और बहुत सारे लोग लापता हो जाते हैं। तो ये जो डेमोक्रेसी का एक प्रकार था, इसमें क्या होता है कि जो इसके बाद जब पिनोचेट का बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो जाता है लोगों को, लोग वहाँ के परेशान हो जाते हैं इस मिलिट्री कूप के गवर्नमेंट से, तो दोबारा से रिस्टोरेशन होता है डेमोक्रेसी का। अब दोबारा से रिस्टोरेशन कैसे होगा डेमोक्रेसी का कि जो पिनोचेट की मिलिट्री डिक्टेटरशिप होती है, इस समय ये एक एंड पे तब आती है जब लोग वहाँ के डिसाइड करते हैं कि एक रेफरेंडम बनाएंगे। 1988 में एक रेफरेंडम बनाते हैं। रेफरेंडम में क्या होता है कि लोगों को फ्रीली वोट करने का अधिकार दिया जाता है। यहाँ पर इसमें जब रेफरेंडम होता है तो उसमें पिनोचेट सोचता है कि उसको हम लोग सारे पीपल्स यस बोलेंगे, लेकिन एक्चुअली क्या होता है जब इलेक्शन होते हैं तो सारे लोग नो बोल देते हैं, यानी कि पिनोचेट की गवर्नमेंट को हटाने की बात कर देते हैं। और जब पिनोचेट की गवर्नमेंट को हटाने की बात करते हैं तो मिलिट्री पावर वहाँ से हटाने की बात की जाती है। तो मिलिट्री पावर से हटाने की बात ये कि लोगों को रियलाइज़ हो जाता है कि जो एलएनडी ने अपने संबोधन में बाद में लास्ट बात कही होती है कि लोगों को जब समझ में आएगा कि कौन लोग कायर हैं, कौन लोग जो है मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, उनको पनिशमेंट जरूर देना। तो इसका मतलब है गवर्नमेंट, वहाँ की जो जनता होती है वो समझ जाती है कि हमारे राजा को किस तरह षड्यंत्र करके, कॉन्स्पिरेसी करके इन लोगों ने मरवा दिया था। उस समय से चिली में वहाँ पर उस समय चिली में लगभग 4 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो जाते हैं,
और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं उस इलेक्शन में, और लास्ट में जा कर के वहाँ पर जनरल बैचलेट जो कि जो डॉटर होती हैं, ये जो डायग्राम दिखा गया है इसमें ये जनरल बैचलेट की डॉटर हैं, ये जो बच गई थी, जिनको पहले क्या कहते हैं कि पिनोशेट ने अपने यहाँ बहुत प्रताड़ना दी थी और प्रेजेंट में रखा था। तो ये एक्चुअली जो है वहाँ की फिर से जो अब की बार जनरल इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंशियल, उसमें ये जीत जाती हैं और वोन करने के बाद में इनको प्रेसिडेंट बनाया जाता है जनवरी 2006 में। यहाँ पे देखिए लिखा है मिशाइल बैचलेट वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ चिली इन जनवरी 2006। और एक मेडिकल डॉक्टर होते हैं जो मॉडरेट सोशलिस्ट होते हैं, समाज सेवी होते हैं, मिखाइल इनका नाम होता है, और एक मिखाइल होती हैं जो कि फर्स्ट वुमेन होती हैं, एक उनको डिफेंस मिनिस्टर बनाया जाता है लैटिन अमेरिका में। इस तरीके से हमने देखा कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो होते हैं उसमें जो चिली की गवर्नमेंट होती है उसमें चिली की गवर्नमेंट के जो रिचेस्ट मैन होते हैं, जो धनी व्यक्ति हैं, वो हार जाते हैं, और जो वहाँ के लोग जो डेमोक्रेसी को दोबारा चाहते थे उस तरीके से डेमोक्रेसी रिस्टोर हो जाती है, यानी कि चिली में दोबारा से डेमोक्रेसी आ जाती है। ये पहली कहानी थी चिली की। दूसरी कहानी है पोलैंड की। पोलैंड में भी एक कहानी कही गई है कि इसमें ये बताया गया है कि 1980 में पोलैंड के ऊपर पॉलिश यूनाइटेड वर्कर पार्टी का रूल था। उसके बाद ये जो पॉलिश यूनाइटेड वर्कर पार्टी होती है ये एक बच्चों कम्युनिस्ट पार्टी है जिसका जो रूलिंग है पूरे यूरोप में चलता है। और इसके अलावा यूरोप में कम्युनिस्ट इस पार्टी के अलावा, पॉलिश यूनाइटेड वर्कर पार्टी के अलावा कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो फंक्शन नहीं करती, किसी को दूसरे पार्टी को अधिकार नहीं जाते। सारे जितने भी रूल रेगुलेशन होते हैं, जितने भी अधिकार दिए जाते हैं, जितने भी राइट दिए जाते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी को ही दिए जाते हैं, और कम्युनिस्ट पार्टी को ही अधिकार होता है गवर्नमेंट बनाने का। वहाँ पर कोई व्यक्ति, कोई भी लीडर इस पार्टी के अगेंस्ट बोल नहीं सकता था, और जो भी बोलता था उसको जेल में डाल दिया जाता था। जो गवर्नमेंट जो होती है पोलैंड की वो सपोर्ट करती है, और क्या कहते हैं कि ये कंट्रोल की जाती है सोवियत यूनियन यूएसएसआर के द्वारा। सोवियत यूनियन यूएसएसआर में सबसे ज़्यादा कम्युनिस्ट स्टेट है, ये बहुत बड़ा पावरफुल एक कम्युनिस्ट स्टेट है जो कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को ही बार बार बनाता है। 14 अगस्त 1980 को क्या होता है कि जो लेनिन शिपयार्ड, लेनिन नाम की एक जगह है गैंगस्टक सिटी में, वहाँ के जो वर्कर्स होते हैं शिपयार्ड के, यानी कि जो बंदरगाह होता है जहाँ पे शिप वगैरह ठहरते हैं, वहाँ के वर्कर्स जो है 1980 में जाके गैंगस्टक में स्ट्राइक कर देते हैं। स्ट्राइक इसलिए करते हैं क्योंकि उनको बहुत सारी वेजेस नहीं मिलते हैं, बहुत सारी उनकी डिमांड्स पूरी नहीं होती हैं, और ये जो डिमांड्स को पूरी करने के लिए क्या होता है कि जो जितने भी ऑल द फैक्ट्रीज एंड बिग प्रॉपर्टी इन पोलैंड, जितनी भी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फैक्ट्रीज़ होती हैं, ये सब गवर्नमेंट के अंडरटेकन में होती हैं। और ये स्ट्राइक जब शुरू होती है ये इस डिमांड के साथ होती है कि जो वर्कर्स होते हैं उनको वो बोलते हैं कि हमारे क्रेन ऑपरेटर को स्वतंत्र किया जाए, क्योंकि क्रेन ऑपरेटर वहाँ का और एक महिला वर्कर होती है जिसको अन्यायपूर्वक लोग क्या करते हैं, वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है डिसमिस कर देती है जॉब से, और इनको दोबारा से उस जॉब पर रखने के लिए बात मांग की जाती है वहाँ के वर्कर्स के द्वारा। इसके अलावा जो गवर्नमेंट होती है वो ये कहती है कि नहीं, ये स्ट्राइक इलीगल है, हम इसमें कोई आपकी सहायता नहीं करेंगे, क्योंकि वर्कर्स चाहते थे कि वहाँ पर ट्रेड यूनियन बने, और ट्रेड यूनियन जो होती है वो इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, वो किसी भी रूलिंग पार्टी का कहना नहीं मानती पोलैंड में। लेकिन जब ये स्ट्राइक बढ़ती है आगे तो जो इलेक्ट्रीशियंस होते हैं, फॉर्मर जो इलेक्ट्रीशियंस होते हैं, वो सारे के सारे जो शिपयार्ड में जो स्ट्राइक कर रहे होते, तो वहाँ पे लेश वेलेसा नाम के जो लेश वेलेसा नाम के एक वो होती है लेडी, वो इसको ज्वाइन करती है स्ट्राइकर्स को। उनको भी सर्विस से 1976 में निकाल दिया गया होता है क्योंकि वो हायर पे की बात करती है। अब वेलेसा जो है यहाँ पर इन स्ट्राइकिंग वर्कर, जो कि हड़ताल करने वाले वर्कर्स होते हैं, उनकी बहुत बड़ी लीडर के रूप में उभर के सामने आती हैं। अभी जो वर्कर्स जब स्ट्राइक कर रहे होते हैं तो पूरी सिटी में स्ट्राइक हो जाती है, धीरे धीरे बढ़ जाती है। लोग अपनी समझ जाते हैं कि जो वर्कर्स स्ट्राइक कर रहे हैं अपने डिमांड्स के लिए, वो डिमांड उनकी सही है, और सभी लोग कहते हैं कि अब हमें एक इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन बनाने की ज़रूरत है। तो जब ये इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन की बात बार बार आती है तो लोगों ने कहा कि हमें दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भी चाहिए, और हमारे जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, कैदी हैं, उनको भी छोड़ा जाए, और ये जो सेंसरशिप लगा रखी है वो हटाई जाए। सेंसरशिप जो उन्होंने प्रेस पे लगाई होती है, जो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी होती है, उसको हटाने की बात, और उसको डिमांड भी करते हैं। तो वेलेसा जो है इसी क्रम में अपने 21 सूत्रीय मांगों को लेकर के एक एग्रीमेंट बनाती हैं और उस पर साइन कराती हैं वहाँ की गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट उसकी थक जाती है, बार बार स्ट्राइक कंटिन्यू होती है। अब गवर्नमेंट जो है 21 सूत्रीय मांगों पर वहाँ पर लास्ट में हार करके वहाँ पे एग्रीमेंट पे साइन करती है, और उसके बाद एक स्वतंत्र रूप से जो ट्रेड यूनियन है वो बन जाती है और स्ट्राइक हट जाती है। गैंडसेक अग्रीमेंट जो सब साइन होता है, इसको बोलते हैं गैंडसेक अग्रीमेंट। एक ये नया ट्रेड यूनियन का क्या कहते हैं कि वो एग्रीमेंट बनता है, और उस समय एक न्यू ट्रेड यूनियन बनती है जिसको बोलते हैं सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी का इस समय राज्य जाता है पोलैंड में,
और ये पहला टाइम था जब कि कोई इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन बनी थी, और ये कम्युनिस्ट पार्टी के गवर्नमेंट में नहीं होती है। अब ये जो गवर्नमेंट है सॉलिडारिटी की, ये सॉलिडारिटी की जो गवर्नमेंट बनती है तो कुछ दिनों बाद इसमें भी करप्शन इन्वॉल्व होने लग जाता है धीरे धीरे। जब इसमें गवर्नमेंट जो है वो करप्शन इन्वॉल्व होती है तो ये इस गवर्नमेंट के जो जनरल होते हैं जेरेंस्की, ये इनको बहुत ज़्यादा जो है एंशियस एंड इम्पोज मार्शल लॉ, तो ये क्या करते हैं, ये जलन के मारे लोगों पर मार्शल लॉ अवॉइड कर देते हैं, इम्पोज करते हैं। और दिसंबर 1981 में जब मार्शल लॉ लग जाता है तो बहुत सारे सॉलिडारिटी मेंबर जो होते हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है, और उनको दोबारा से संगठित होने का अधिकार नहीं दिया जाता, उनको अपनी बात का विरोध करने का अधिकार नहीं दिया जाता, और उनको अपनी बात को रखने का अधिकार नहीं दिया जाता। तो इस तरीके से स्ट्राइक्स जो होती है वो सॉलिडारिटी गवर्नमेंट के लोग जो है दोबारा से करते हैं 1988 में। और ये समय होता है जब पोलिश गवर्नमेंट जो है दोबारा से वीकर बन हो जाती है, यानी कि अब की बार पोलिश गवर्नमेंट जो है वो फिर से कमज़ोर पड़ जाती है, और वो सोवियत यूनियन जो गवर्नमेंट है उसको अनिश्चित रूप से उसकी इकोनॉमी डिक्लाइन होने लग जाती है, यानी कि इकोनॉमी भी बहुत खराब, क्योंकि लंबी स्ट्राइक से क्या होता है, देश को बहुत नुकसान पहुंचता है। वेलेसा का जो 21 सूत्रीय मांगों का एग्रीमेंट होता है वो अप्रैल 1989 में फिर से फ्री इलेक्शन कराने की जो डिमांड होती है वो फिर से आती है, और इस समय लगभग 100 सीटों में से 99 सीट जो है वो वेलेसा जीत जाती है सेनेट में। और अक्टूबर 1990 में पोलैंड जो होता है फिर से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वेलेसा को वहाँ का प्रेसिडेंट करार देता है, और इस तरह डेमोक्रेसी आ गई। तो ये हमने बच्चों पढ़ा कि ये दो फॉर्म थे डेमोक्रेसी के यहाँ पर जो हमने पढ़े। इस समय दो फीचर्स जो डेमोक्रेसी के हमने स्पेशली पढ़े, तो हमें ये लगा कि जो डेमोक्रेसी कई सारी कंट्रीज ऐसी होती है जो डेमोक्रेसी जहाँ पर क्या कहते हैं कि नहीं होती, वो नॉन डेमोक्रेटिक रूल होता है, तो वहाँ पर डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेसी मतलब डिक्टेटरशिप जो है वो ट्रांसफ़र होती है और फिर डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाती है, जैसे कि आपकी बन गई चिली। और अब यहाँ पर भी जो कहा गया है कि दूसरी प्रकार की कंट्री वो थी जहाँ पर सॉलिडारिटी गवर्नमेंट जो होती है वो करप्ट होने के बाद में जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो उस कम्युनिस्ट डेमोक्रेसी से अब की बार जो है फ्री ट्रेड यूनियन पार्टी जो है बनती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम देखते हैं कि दो फीचर्स हमें दिखाई पड़ते हैं डेमोक्रेसी में। पहला होता है द पीपल कुड नॉट चूज और चेंज देयर रूल, कि लोगों को अधिकार नहीं दे सकते कि वो अपने रूलर्स को चेंज कर सकें, है ना। ये होता है पोलैंड की गवर्नमेंट में। देयर वॉज नो रियल फ्रीडम टू एक्सप्रेस वंस ओपिनियन, और जो हम पोलैंड की गवर्नमेंट में ये भी देखते हैं कि वहाँ पर कोई फ्रीडम नहीं होती अपने ओपिनियन को रखने की, अपने ऑर्गेनाइज होने की, कोई एसोसिएशन बनाने की पोलिटिकल। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेमोक्रेसी है वो कैसी होनी चाहिए, डेमोक्रेसी ऐसी होनी चाहिए कि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन जो डिफाइन की गई वो ऐसी रही है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट अलाउज पीपल टू चूज देयर रूलर्स, यानी कि डेमोक्रेसी एक ऐसा गवर्नमेंट का प्रकार है जिसमें लोगों को क्या कहते हैं कि उनके द्वारा चुने गए रूलर्स को ही रूल करने का अधिकार दिया जाता है। डेमोक्रेसी में वन लीडर इलेक्टेड बाय द पीपल शुड रूल द कंट्री, जो भी डेमोक्रेसी में जहाँ भी प्रजातंत्र होगा वहाँ पर लोगों के द्वारा जो उसका लीडर होगा वो चुना जाएगा और वही रूल करने का वहाँ अधिकारी होगा। एंड द पीपल हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस व्यूज, लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार दिया जाएगा, ऑर्गेनाइज होने का अधिकार दिया जाएगा, से वो संगठन बना सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं और किसी भी ऐसी बात का विरोध भी कर सकते हैं जहाँ पर वो बात उन्हें पसंद ना आए। तो बच्चों आज पार्ट 1 में बस इतना ही। अब आगे मैं इसके पार्ट 2 में और आगे आपके लिए बनाऊंगी। तब तक के लिए टिल देन बाय एंड प्लीज़ शेयर एंड लाइक माय वीडियोस। ओके बाय।